On this day in 1947, India got its freedom from the British rule. The then Prime Minister Sri Jawaharlal Nehru hosted the national flag at Red Fort in Delhi. Many great and brave freedom fighters gave up their lives so that we can live in a free country. Independence Day reminds us that we all should rise up whenever this is oppression, and when freedom and integrity is essential for everyone. 15th August is considered a national holiday, and we celebrate it by hosting our national flag and singing our national anthem with all our pride every year. I am proud to be an Indian. Jai Hind.
very warm good morning to our Honorable Chief Guest, President Madam, committee members and all the dignitaries. So today, we are gathered here to celebrate the 78th Independence Day of our nation. So I, Alisha Sayyad from Standard 10B, is standing before you to discuss on a topic that strikes at very heart of our identity, to spark the spirit of patriotism in today's youth. Not only in youth, but in all Indian citizens. As we gather here, we are reminded of the words of Mahatma Gandhi, who said, "The best way to find yourself is to lose yourself in the services of others." Our nation today is standing on the shoulders of such great ideals, and it is now up to the youth to carry forward this talks. First, let us try to understand what is patriotism. Patriotism is not just about loyalty to a flag or anthem. It's a profound love for one's country. Profound love for one's country that includes the sacrifices of the past and responsibilities of the present. Patriotism is the kind of spirit we must instill in our youth, not for just to remember the sacrifices of our freedom fighter, but also to continue the mission of building a just and prosperous nation. Our youth are the lifeblood of the nation. They have inherited a rich legacy, but with that comes the responsibility to uphold and advance it. Patriotism in youth means challenging their energy, passion and creativity towards the development of our society. Be it education, innovation or social service, our youth has the power to transform our nation. They must be guided by the strong sense of patriotic values. True spirit of patriotism is in sacrifice and placing the country above oneself. We need to ensure that our education system imparts not just knowledge, but also the history. Our history should be taught in such a way that it brings to the light the sacrifices and the resilience that built our nation. We need to ensure that our education system imparts not just knowledge but also the values of patriotism. We need to encourage our young generation to actively engage in community service and nation building activities. So, let us work together and ensure that our youths are filled with the true spirit of patriotism so they may lead our nation towards a more united and brighter future. A country's greatness lies within the ideal love and sacrifices that inspires the mothers of the race. Liberty is the breath of the nation. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. की पत्नी नवलकर वंश की वधू प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक।
और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। Than the fact that in these COVID times, the world's biggest sporting event, the Olympics, will begin tomorrow in Tokyo.
हमें उपहार में नहीं मिली है, इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स, फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। आओ, आओ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई।
मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जरूर इतना बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ होइया। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ। पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा? तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं, उनके हाथ खोल दिए जाए। वो ख्वाजा था, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ सकता कि वो भी तो एक इंसान है। उसके भी घर में माँ, बहन, बीवी और बच्चे से बसता हुआ
एक छोटा सा संसार था। जब फौज में शामिल हुआ था तो ये नहीं सोचा था कि वापस उसकी लाश हो जाएगा, और ना ही ये सोचा था उस कफन में लिपटी हुई उसकी लाश को देखकर उसके छोटे से संसार की आंख भर गई। साहस कितना है ना उस मां में जो इस उम्र में भी बेटे को कफन पहनाया है। सोचा था कि कभी उसकी चिता को लकड़ी उसका बेटा देगा, जिसे उम्मीद पकड़ के चलना सिखाया है, जिसे उम्मीद पकड़ के चलना सिखाया है।
जिंदगी बरसों तलक रोती है। ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। ऊपर नीला आसमान है, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले है और बेशुमार ज़मीन। तो क्यों बनते रहना, हम क्यों बने हैं मुल्कों में? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा